It is an honor to welcome you all in AICTE Training and Learning Atal Academy sponsored 1-week faculty development program on smart manufacturing and engineering management in the era of Industry 4.0 Day 3, which is organized by Mechanical Department. We all are gathered here for the plenary session of Nitin Bhagwakar sir on the topic Robotics and Automation in Smart Factories. Before starting with the session, I would like to invite Dr. R.K. Pumanik sir to present something to Nitin Bhagwakar sir. Nitin Bhagwakar sir, Vice President Engineering at Bajaj Group of Steel Industry Limited, Nagpur. He completed his B.Tech in robotics, served for different industries, 1899, having total industrial experience around 36 years, 3 years in gear manufacturing, 2 years in development of new three-wheeler car, 6 years experience in development of fully automatic foundry and then development of 400 types SG iron automobile component including crankshaft. In year 2000, he developed first automatic 400-ton hydraulic press in India for cotton giving industry and developed 90 bales per hour, fastest capacity baling press for America and Africa. Sir has also specialization in design quality, hydraulic manufacturing and tool room. He also conducted guest lectures at VNIT Nagpur, Gaikwad Patil College of Engineering, G.H. Raisoni College of Engineering and Suryoday College of Engineering. He was also expert judge for many model exhibitions. He is also a member of GHRCE Industry Advisory Board, Department, Suryoday MBA College. Technical Project Guide for Diploma, BE, MTech students. He is also qualified in internal audition for new ISO 9001 2015 and IMS. Talking about his achievements, he has revolutionized giving industry by introducing fully automatic milling press products which changed the concept of India and now getting more respect in world market. His target is to motivate and develop 50 technical experts from fresher engineering per year for worldwide cotton industry. With this, I would like to call Nitin Bhagwakar sir to start with his session. Sorry, mic बॉक्स को भी चेंज कर First, thanks to Sri Bhagwati College of Engineering, Management and Department of Mechanical and all faculties. Today topics we know importance of robotics and automation in our factories and why faculty must integrate this in. Before that, I would like to introduce myself. I am Nitin Bhagwakar, working with Bajaj Industry since 1990.
पहले तो मैं बजाज स्टील का थोड़ा सा आपको परिचय करवा देता हूँ कि बजाज स्टील क्या है बिफोर हम अपने टॉपिक पे काम करें। बजाज स्टील इंडस्ट्री वी आर वर्ल्ड लीडर इन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री। वर्ल्ड लीडर means we are number one. We are Indian company and Bajaj Steel has took over an American company called Continental Eagle Corporation. In 2008, Bajaj Steel collaborated with them and now Bajaj Steel has taken over. In Nagpur, we have total 16 factories total. जैसे कि हमारा काम ये प्रोजेक्ट लगा के कंप्लीट प्रोजेक्ट जिनिंग एंड प्रेसिंग और ये सारे प्रोजेक्ट्स फुल्ली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक है मतलब उसमें सारी चीज इसमें कवर हो चुकी है। और आज का हमारा टॉपिक भी उसी रिलेटेड है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। और ये सब्जेक्ट यहाँ पे आप डिफरेंट फैकल्टीज से हैं, डिफरेंट ब्रांचेस। फिर भी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन आज की जरूरत है तो इसमें सारे के सारे ब्रांचेस इन्वॉल्व। ऐसा ऑटोमेशन ऐसे नहीं हो सकता कि केवल इलेक्ट्रिकल वाला कर सकता है कि मैकेनिकल वाला कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स। जब सारे जन इकट्ठा मिलते हैं तो रोबोटिक्स होता है, तो ऑटोमेशन। ये सारे डेफिनेशन आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है क्योंकि आपका काम है लोगों को पढ़ाना और टीचर को कोई चीज बताना उससे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज दूसरी कुछ भी नहीं, क्योंकि टीचर सबको बताते रहते और टीचर को सुनने की आदत वैसी कम रहेगी। और जब कोई कुछ बताता तो एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस। और फैकल्टी को क्यों ट्रेन करना है, क्योंकि फैकल्टी को आएगा तो वो आगे ज्ञान लोगों को देगा। जिस तरह से हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, रोबोटिक्स इज स्पेसिफिक फील्ड ऑफ ऑटोमेशन दैट फोकसेस ऑन द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रोबोट्स। Robots are programmable machines that can perform tasks autonomously or with human interaction. Robotics combine elements of mechanical engineering, electronics, computer science, artificial intelligence to create a intelligent machines. ये robots हो गया। और automation का definition, automation refers to use of technology to automate tasks, processes or systems, often with minimal human intervention. It involves using a control system such as computers or robots to operate and control machinery or process. Automation can be applied to various industries including manufacturing, logistics and services. दोनों चीजें बजाज स्टील के साथ में थोड़ा इसको कंपेयर करूंगा क्योंकि आपको ये सारी चीज तो बहुत अच्छे से पता है, रोबोटिक्स क्या है और ऑटोमेशन क्या है। हमारा बेसिक एम है कि फैकल्टी ने ये टीचर को, स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ा और कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना ताकि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको पता रहेगा कि नहीं मुझे इंडस्ट्री में जाके करना क्या है, एक्चुअली क्या करना है। अदरवाइज इंडस्ट्री में आ रहे स्टूडेंट्स, उनको कुछ भी पूछ रहे वो बोलते हैं हमको नहीं पता है, स्ट्रेट आंसर। नेक्स्ट हम थोड़ा कंपैरिजन में करते हैं कि ऑटोमेशन इज अ बॉर्डर कंसेप्ट ऑफ encompasses various technologies while robot is specific field within automation that focuses on robots. And machinery automation can involve fixed or flexible machinery, whereas robotics specifically involves robots. Intelligence use होता है, robotics often involves more advanced AI and machine learning capabilities than traditional automation. In simple terms, all robotics is automation, but not all automation is robotics. जैसे मैंने आपको बोला था कि बजाज स्टील इंडस्ट्रीज क्या करती है, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। व्हाट इज मीन बाय टर्न की प्रोजेक्ट्स? टर्न की प्रोजेक्ट्स में हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप हमको लैंड दे दो, पावर दे दो, बेसिक जितनी भी चीजें हैं बजाज स्टील
कस्टमर के पास रहती है, बाकी कंप्लीट चीज मशीन, मैन पावर, बिल्डिंग, सिविल, एवरीथिंग बजाज से इंस्टॉल करके देगा। हमारी टीम जाएगी, वो प्रोडक्ट को चालू करके देगा, जो भी कैपेसिटी हमने बोली है वो प्रूव करेगा, एंड देन ओनली ही हैंड ओवर दैट की टू द ओनर, एंड देन वी से इज अ टर्न की प्रोजेक्ट। आप सिर्फ की को टर्न कर दो, आपका प्रोजेक्ट रेडी है। इसके पहले की सारी जिम्मेदारी हमारी। जब हम टर्नकी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आजकल सारी दुनिया को पता है कि सबसे डिफिकल्ट है लेबर मिलना। लेबर मार्केट में अवेलेबल है नहीं, और ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे से एन नंबर ऑफ चीजें होती है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, खास करके मटेरियल हैंडलिंग। देन जो कंटिन्यूअस लाइन चलती है उसमें अगर ज्यादा मैन पावर का इंटरवेंशन रहेगा तो कभी कोई हाथ डाल देता, कहीं उसके ऊपर चल जाएगा तो एक्सीडेंट होते। हम रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बात आजकल करते ही क्यों है, हर जगह पे करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हो। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको आज काम करने वाला आदमी मिलता ही नहीं, तो ये जिम्मेदारी हो गई आज इंजीनियर्स की कि हमको एवरीथिंग ऑटोमेशन चाहिए। जब हम रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ये सारी ब्रांचेस, इससे ज्यादा भी है लेकिन मेजर 5 ब्रांचेस: मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये सारी की सारी ब्रांचेस जब इकट्ठा होती है, एक साथ काम करती है, मिलकर काम करती है, तो ऑटोमेशन होता है, तब रोबोट। And why this topic matters? जैसे भी हमने बोला था कि लेबर का एक प्रॉब्लम है, रिस्क का एक प्रॉब्लम है, सेफ्टी का एक प्रॉब्लम है। आज हम इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में काम करते तो ये प्रॉब्लम हमको आराम से समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैंने अमेरिका में काम किया, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया, जब मैंने अफ्रीका में काम किया, हर कंट्री की अपनी अपनी लिमिटेशंस है। अमेरिका में आपको कंप्लीट ऑटोमेशन देता है, A to Z, नो वन यूज कि नहीं हमको लेबर मिलेगा ही नहीं। जैसे अभी अभी अपन इंडिया में ये प्रॉब्लम तो अभी अभी फेस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ये प्रॉब्लम बहुत पहले आ चुकी है, क्योंकि वहां सेफ्टी है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पॉपुलेशन यू नो कि आप 200 किलोमीटर ट्रैवल करते तो एक गाड़ी आपको क्रॉस कर, और यहाँ पे अपन 200 मीटर ट्रैवल करते तो कितनी गाड़ी क्रॉस करती है। यहाँ से आने से केवल 500 मीटर आने के लिए 10 मिनट लगता है। इसीलिए इंडिया में रोबोट ऑटोमेशन का ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं रहा, क्योंकि लेबर चीप। आज बाहर में लेबर बहुत महंगा है। अभी स्लोली इंडिया में ट्रेंड आ रहा है, अभी आपको घर का काम करने के लिए भी आदमी नहीं मिलता। इसीलिए हमने इंडस्ट्री ने क्या किया, एक एक इक्विपमेंट लाके दी, वॉशिंग मशीन लाके दिया, घर की चीजें, ये सारी दिस इज नथिंग बट स्मॉल रोबोट्स आपके लिए जो काम कर रहे हैं। हमको रोबोट्स बोले तो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो रजनीकांत वाला वही एक रोबोट है, लेकिन वो रोबोट नहीं है। जो भी हमको मदद कर रहा है वो सारी चीजें रोबोट, छोटा रहे बड़ा रहे, उसमें इंटेलिजेंस भी आए, हम कैलकुलेटर भी यूज करते। पहले तो सारा चीज अपने को कैलकुलेट करते करते लिखते हम लोग काम करते थे। आप लोग अच्छी जनरेशन से हो जिनको ये बहुत सारी चीजें पता है। और आज हमको बताएं कि हम इंडस्ट्री 4 की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज रैपिडली शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्मार्ट फैक्ट्रीज। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आर कोर एनेबलर्स, नॉट ऑप्शनल टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्री नाउ एक्सपेक्ट्स ऑटोमेशन रेडी ग्रेजुएट्स। ये फैकल्टी के लिए ये तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री इज नाउ एक्सपेक्ट्स ऑटोमेशन रेडी ग्रेजुएट्स। Gap exists between traditional curriculum and industry needs. What we teach today determines whether students are employable tomorrow.
कहावत है नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आज नीड किसकी है हमको? ऑटोमेशन इंजीनियर जो आ रहा है मार्केट में, उसको पता रहना चाहिए कि मुझे जो इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री ऐसे सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं होती है, पूरा देशी इंडस्ट्री, यहाँ पे मुझे जो भी आदमी लगने वाला है उसको ऑटोमेशन रिलेटेड चीजें पता रहना चाहिए। आजकल कार भी आपकी ऑटोमेटिक है, कोई प्रिफेयर नहीं कर रहा, और 10 साल के बाद शायद गियर वाली कार आउट हो जाएगी। व्हाट इज स्मार्ट फैक्ट्री? अभी पुराने जमाने में जो फैक्ट्रीज थी वो सारी कन्वेंशनल थी। कन्वेंशनल फैक्ट्री मीन्स यहाँ पे जितने भी मशीनें लगे हुए रहते थे इंडस्ट्री में, हम मैकेनिकल इंजीनियर साइड से तो ज़्यादा मैकेनिकल की तरफ, यहाँ पे मैकेनिकल लोग कितने हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिकल एक है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सभी लोग हैं। तो ज़्यादातर मेरी बातों में मैकेनिकल इसलिए ज़्यादा आएगा क्योंकि हम मैकेनिकल के साथ ही काम करते हैं। अब जो आदमी जिसके साथ काम करता है उसको सारी दुनिया उसी एंगल से दिखती है। लेकिन मेरा बेसिक जो प्रोफेशन है वो डिज़ाइन का। अब डिज़ाइन में एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अपना जो कंसेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो उसमें आप देखोगे कि जो ब्रह्मा है उसको 4 मुंह बताए हुए, तो उसका काम है डिजाइन का। जब मैं इसको थोड़ा कोरिलेट करता हूँ तो जो डिजाइन का बंदा रहता है ना, उसको चारों तरफ देखते हुए आना चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग पता रहना चाहिए, उसको मेंटेनेंस पता रहना चाहिए, उसको सर्विस भी पता रहना चाहिए और प्रोडक्शन भी पता रहना चाहिए। जब ये 4 चीजें उसको पता होगी तभी वो अच्छा डिजाइन कर सकता है। आज जैसे हमने मेरी जो सबसे बेस्ट मशीन है जो मैंने डिजाइन की है वो आज 10 करोड़ की, जो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में वहां पे लगती है, फुल्ली ऑटोमेटिक, कोई भी इंटरवेंशन नहीं, आदमी का कोई आदमी उसमें रहेगा ही। और आज वो मशीन हमारे वर्ल्ड में ये जिनिंग एंड टेस्टिंग में टॉप है। यहाँ पे ऑटोमेशन उनकी गलत है। उसी टाइप की मशीन जब मैं इंडिया में बेचता हूँ तो उनको ऑटोमेशन चाहिए नहीं, वो बोलते नहीं इतनी महंगी मशीन नहीं चाहिए। उनके लिए हमने इकोनॉमी मॉडल बनाया हुआ है जो लोअर डाउन करते हुए 50 लाख का है। तो कहाँ 50 लाख और कहाँ 10 करोड़? डेफिनेटली कैपेसिटी काम है, स्पीड काम है, सब चीज़ है। तो 50 लाख में इंडिया में हो रही है। अमेरिका में लोग बोलते हैं हमको 3 महीना काम करना है, 3 महीने में मुझे इतने सारे नंबर ऑफ बेस भरा है। तो वहाँ पे जो ऑटोमेशन हमको करना है वो कंप्लीट करना है। इसलिए जो डिजाइनर होता है, हमेशा मैं बताता हूँ हमारे डिजाइन सेक्शन की टीम को कि जब आप यहाँ पे आ गए ना तो हर गए कि आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर, यू मस्ट बी अ प्रोडक्ट इंजीनियर। वो प्रोडक्ट को जो कुछ लगता है ये तुमको आना चाहिए, उसका इलेक्ट्रिकल आना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, उसका प्रोग्राम भी आना चाहिए, स्काडा आना चाहिए। और जो मैनुअल देते हैं बोलते बाकी सारी स्कूल की किताबें बाजू रखो, इसको पढ़ो, इसको वापस से पढ़ो, और कंटिन्यू हम आने के बाद 1 महीना उससे वही चीज पढ़ाते हैं। क्योंकि अभी आपका परफॉर्मेंस वो मैनुअल और वो किताब के बेस पे काउंट होने वाला है। दुनिया आपको एक ही चीज से देखती है कि जो काम आप कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर सिर्फ बैटिंग करता है तभी भी नाम है, तो हम बोलते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस करो। दुनिया में क्या बन रहा है छोड़ो, एरोप्लेन कैसा बनता है हमको कोई लेना देना नहीं, हमारे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ये प्रोडक्ट की वजह से लोग बजाज स्टील को जानेंगे, उनको बेनिफिट होगा तो वो 4 लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट, यही बात जो हम कर रहे हैं कि रोल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ इन स्मार्ट फैक्ट्री। जैसे जैसे ऑटोमेशन होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करना है तो आपको मास प्रोडक्शन चाहिए, स्पीड चाहिए, और ये स्पीड के लिए ये सारी चीजें जो है रोज रिपीटेटिव, प्रिसाइज and hazardous class automation ensures speed, consistency and accuracy। 24/7 का प्रोडक्शन होता है, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल होता है जब हम ऑटोमेशन से काम करते हैं। सिर्फ ऑटोमेशन का मतलब सामान यहाँ से वहाँ रखना नहीं है। ऑटोमेशन में यहाँ पे आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे आपको रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आपने
ऑटोमोबाइल में भी सुना होगा कि कार की लाइन चलती रहती है और फाइनली वहाँ पे हर 5 मिनट में एक कार आपके बाहर आती है। ये कारण है कि आज इंडस्ट्री को क्यों ऑटोमेशन और रोबोट चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है आपको, ह्यूमन एरर रिड्यूस करना है, वर्कर की सेफ्टी देखना है, मास कस्टमाइजेशन है, और उसके लिए क्या क्या इंजीनियर का लगने वाला है, उसको प्रोग्राम रोबोट्स करना आना चाहिए, अंडरस्टैंड पीएलसी होना चाहिए, सेंसर ऑटोमेशन का ज्ञान रहना चाहिए। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन के लिए। और इसीलिए फैकल्टी का टीचिंग करते टाइम उन्होंने कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा रिक्वायर रहेगा उनको कि और सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग मान लो एप्लीकेशन, रोबोटिक कनेक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डाटा साइंस. Robotics is not separate subject. It is a platform that integrates all core engineering concepts. बार बार वही बात नहीं करनी, जब भी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन करेंगे ये चीज बार बार आपके सामने आने वाली है। अभी जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहला इंटरेस्ट होता है कि आज इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है वो होता है जॉब, कंपोनेंट, प्रोडक्ट्स। लेकिन इंस्टीट्यूट और कॉलेज का आउटपुट क्या होगा? आज जैसे कि प्रीमाइसेस में खड़े हैं, यहाँ से आउटपुट क्या निकलते हैं? व्हाट इज द आउटपुट? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अगर अच्छे हैं तो कॉलेज अच्छे। आज भी कुछ कॉलेज के नाम हैं, तो वो कॉलेज में पढ़ के आए तो वो अच्छा ही होगा। वीआरआईटी आज भी लोगों को गारंटी है इंडस्ट्री को, वीआरआईटी का स्टूडेंट अगर है तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी नागपुर में बहुत सारे कॉलेजेस है जिन्होंने अपने लेवल को अपग्रेड किया है, वीआरआईटी के पहुँच चुके हैं। रामदेव बाबा कॉलेज भी पहले सिर्फ एक वीआरआईटी के बाद रामदेव बाबा था, लेकिन अब आईसीसी है, रायसोनी है, तुलसीदास गायकवाड़ पाटिल कॉलेज है, अपना कॉलेज है, सूर्योदय कॉलेज है। सब लोग अपनी मेहनत करते हैं। जब सब लोग अपनी मेहनत करते हैं तो कंपटीशन बढ़ती है। कंपटीशन बढ़ती है तो अपने को अगर मार्केट में रहना है तो आपका प्रोडक्ट बेस्ट रखना जरूरी है। आज जो इंडस्ट्री में बात है सिर्फ कॉलेज में, कॉलेज में ना हो, इट इज एजुकेशन इंडस्ट्री, फर्क कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट वो सारा चीज कैसे बनाएंगे उनके ऊपर डिपेंड है। तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन हमारे प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए स्टूडेंट जब कोई भी कॉलेज में आता है तो उसका फाइनली कुछ ना कुछ एम रहता है, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए। तो हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। मैंने बहुत सारे कॉलेज में गया, वहाँ पे मैं अगले स्लाइड में पॉइंट मैंने लिया हुआ है कि क्या मिसिंग है, जिसकी वजह से विदर्भ का स्टूडेंट खास करके आगे क्यों नहीं आता है। ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज है लेकिन फिर भी आगे नहीं आता। तो ये चीजें उनको पता नहीं रहती कि हम कहाँ पे और कौन से लाइन से आगे बढ़े। नेक्स्ट।